Okay, so let me welcome all students and parents attending this particular session on careers after class 12. What are the stream choices exams you are going to take? Uh, I hope all of you are carrying a notepad and a pen next to you, and parents and students, all of the, both the key stakeholders for this particular session are attending this particular session. Okay, now before I move on, I will like to first understand your academic stream. So can you please type the academic stream inside the chat box? C for commerce, H for humanities, M for medical, non-medical. So let me understand the profile of my classroom today. Medical, commerce, humanities, medical, commerce. Okay, so I have students across all academic streams attending my particular session today. And let me tell you, the exams, the courses, the choices, the programs, आज मैं जितनी भी बातें करूंगा अगले 60 मिनट के अंदर, they are all stream neutral career choices, stream neutral option, and each one of you is eligible फॉर दिस. सो आज मैं ऐसा कोई प्रोग्राम बात नहीं करूंगा जो शायद कॉमर्स के बच्चे दे सकते हैं या ह्यूमैनिटीज नहीं दे सकते. ऑल स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स नहीं है वो सब भी इन सब प्रोग्राम्स एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं. तो आज मैं आप सबसे उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो कि सब स्ट्रीम के बच्चे आराम से दे सकते हैं एंड एलिजिबल हैं देने के लिए. ग्रेट. सो क्या आपने सोचा है वेयर विल यू बी राइट आफ्टर क्लास 12th? March is when the board exam typically ends, and July is when you typically join a particular college. So which college, which course, which program are you going to be in? कुछ सोचा है क्या? Any specific thought? कौन से कॉलेज में जाने का सोच रहे हैं? कौन से कोर्स में जाने का सोच रहे हैं? कौन से करियर में जाने का सोच रहे हैं? क्विक रिस्पॉन्सेज विल हेल्प. लेट मी अंडरस्टैंड क्या चल रहा है आपके दिमाग में. एंड दिस सेशन हैज टू बी वेरी वेरी रेलेवेंट देयर. SRCC, okay. What else? Okay, SRCC, AFMC is your dream college. Okay, what about others? Great. Economic honors in DU. Wow, very good. What about others? Okay. Psychology. History honors. Is this better now? Is this better now? Okay, somebody said my voice is breaking, so I was trying to fix it. So I hope it is better. Great. So history honors, St. Stephens. Okay. Great. Psychology. Okay. Psychology, economics, law, IPM, management. Okay, so there are good number of students exploring lot of these exciting career options, and आज हम इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं. Daksh is saying I want to go to NLU. Okay, so बच्चों प्लीज ध्यान दीजिएगा and stay attentive, stay focused. आज हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे. And let me start. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एजेंडा. आज हम क्या क्या करने वाले हैं. आज मैं आपसे बात करूंगा हमारे देश में एजुकेशन लैंडस्केप चेंज कैसे हो रहा है. सो अबाउट द चेंजिंग एजुकेशन लैंडस्केप, सिलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे आपको सही करियर, सही कॉलेज, सही कोर्स को चूज करना चाहिए, ये हम आज बात करेंगे अगले 60 मिनट के अंदर. सीयूईटी क्या है? सीयूईटी इज अ गेटवे टू एडमिशंस टू लॉट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज. हम सीयूटी के बारे में बात करेंगे, सीयूटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में, सीयूटी के आने से क्या चैलेंजेस आए हमारे सामने. हम कुछ स्ट्रीम न्यूट्रल करियर चॉइसेस के बारे में बात करेंगे. एंड देन हम बात करेंगे व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. होता क्या है? ये एक टर्म बड़ी कॉमन आजकल यूज हो रही है. व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट? ये बच्चों, कॉमर्स के बच्चों को भी देना होता है, ह्यूमैनिटीज के लिए भी रेलेवेंट है, PCM एंड PCB के लिए भी रेलेवेंट है. ओके, सो देन व्हाट आर द 3 golden rules which are required to crack aptitude test? So aptitude is the necessity. What is it that you can do? What is that students can follow so that you can crack these exams? And last is what role parents can play in this particular journey. So बहुत ही important है कि parents की क्या क्या play कर सकते हैं. बहुत बार parents हमारे पास आते हैं और वो suggest करते हैं कि सर हम तो कुछ contribute नहीं कर सकते. Things have changed. बहुत ज़माना बदल गया है. But yes, there is a role which parents can play in this particular process. We'll talk about that as well. So this is in a nutshell. And आज
आज 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ करके जाऊंगा। आज आपको मैं बता के जाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट 2 टेकअवेज। नंबर 1 टेकअवे, आपके 12th बोर्ड में कितने नंबर आने वाले हैं जानना चाहेंगे? आई होप यू विल डेफिनेटली बी कीन। सो आज मैं जाने से पहले आपको यह बता के जाऊंगा, आपके ईच वन ऑफ यू, how many marks are you going to score in class 12 board? So there is a small activity which I'm going to do with you, which will, give you an insight about the scorecard so that you can understand, and there's a logic behind it. And second important thing is एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक करने के 3 गुरु मंत्र। ये 2 इंपॉर्टेंट टेकअवेज तो यहां से जरूर जाएंगे। माय नेम इज दीपक मदान। आई हेड career launch of Faridabad in Gurgaon branches, and I've been counseling, teaching and mentoring kids from the last 24 years, and I've been writing all of these exams. This is my scorecard for CUET. I appeared for law entrance exams like CLAT, and let me tell you, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये आई एम कैरिंग ऑल द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज एग्जाम्स टू द कोर। उससे भी ज्यादा मेरी अच्छी पहचान मैं आपको देना चाहूंगा, ब्रीफिंग देना चाहूंगा। माई ओन सन, द एल्डर वन इज इन ग्रेड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द यंगर वन इज इन ग्रेड 8। तो आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और इन सब चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, तो विश्वास रखिए, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म ऑफ करियर लॉन्चर, बट आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ। सो every single piece of information is going to be very valuable, very insightful. So please take notes. प्लीज टेक नोट्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बट मेरा एडवाइस रहेगा इन स्क्रीनशॉट की जगह नोट्स की तरफ जाइए। लिखेंगे तो याद रहेगा। यू राइट, यू रिमेंबर, यू रीड, यू फॉरगेट, एंड दैट इज व्हाट यू शुड फॉलो। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1. Some of the students have already attended and parents had not attended this session, so I am making it from the basic to the advanced level in one go so that we are all on one page. तो हम सब बच्चे एक ही स्टैंडर्ड प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग को कैरी कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिक एंड द मोस्ट फंडामेंटल लर्निंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरे को एक बच्चे ने बोला मुझे एनएलयू में जाना है, एक बच्चा कह रहा है मुझे एसआरसीसी जाना है, and Umang ne bola NLSIU. So just understand difference. Umang said NLSIU Bangalore and Daksh said NLU. So is there a difference? Yes, there is a difference. So one person is talking about, somebody is saying DU jana hai, somebody is saying SRCC jana hai. There is a difference. So what are you running for? What is the key goal? What is the key thing which we need to run for? Degree or college? Most important thing is today, the race is for getting admission into one of the top college. कॉलेज की वैल्यू है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, बीबीए और एनी ऑफ दीज बैचलर डिग्री. सो लॉट ऑफ दीज डिग्रीज कम just by sitting at home, doing some correspondence courses, but वैल्यू किसकी है? वैल्यू कॉलेज की है. रेस किसके लिए लग रही है? कॉलेज के लिए लग रही है. डिग्री के लिए रेस नहीं लग रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छे कॉलेज में एक इंपॉर्टेंट चीज है. क्यों हम किसी भी कॉलेज को अच्छा कहते हैं? अच्छे कॉलेज की परिभाषा क्या है? अच्छे कॉलेज की सिर्फ एक ही परिभाषा है. अच्छे कॉलेज की परिभाषा है अच्छे बच्चे. जहां अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं, जहां अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं वहीं अच्छी जॉब्स, वहीं पे ज्यादा बच्चे जाना चाहते हैं. लेकिन प्लेसमेंट होती किसकी है माय डियर किड्स? प्लेसमेंट होती है स्टूडेंट्स की. इसका मतलब लॉजिक इज वेरी क्लियर. जिस कॉलेज में अच्छे बच्चे हैं वहीं पे तो अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, और जहां अच्छी प्लेसमेंट्स हैं उसी कॉलेज का रेपुटेशन है. और अच्छी प्लेसमेंट एक आउटकम है. अच्छी प्लेसमेंट का मतलब होता है जिस कॉलेज में अच्छे बच्चे पहुंच गए ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स अच्छी हो जाएंगी. सो सेकेंड गोल्डन रूल. तो पहला गोल्डन रूल आज का समझ लेते हैं, टॉप कॉलेज में जाना है. गोल्डन रूल नंबर 2, अच्छे कॉलेज की परिभाषा है अच्छे बच्चे. और अच्छे बच्चे उस कॉलेज में पहुंचे कैसे, ये आपको समझना है. इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. जिस कॉलेज में एंट्री प्रोसेस जितना टाइट होगा, जितना रिजिड होगा, जितना स्ट्रीमलाइंड होगा, उतना अच्छा कॉलेज है. इसका मतलब जिस कॉलेज में एडमिशन बगैर किसी एडमिशन के हुआ, बगैर किसी सिलेक्शन प्रोसेस के हुआ, बगैर किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हुआ, इट इज नॉट ए ग्रेट कॉलेज. जितना मर्जी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना मर्जी बड़ा वो नाम है, it is not going to add any value to you. I hope it is very very clear. अगर ये समझ आ गया है, इसका मतलब लिख लीजिए. मेरे को एक कीवर्ड फटाफट से इसके अंदर डालिए जो आज का इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, टॉप कॉलेज. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू राइट टॉप कॉलेज इन द चैट बॉक्स. ये आपका गोल लिख रहा हूं मैं. सो राइट डाउन टॉप कॉलेज इन द चैट विंडो. योर गोल इज टू गेट एडमिशन इन टू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस. ग्रेट.
वेरी गुड. सो दैट इज वन कीवर्ड यू हैव पिक्ड अप राइट अवे. आगे चलते हैं जी. सो दैट इज वन. एवरीवन, द गोल इज सिंपल, टॉप कॉलेज में जाना है. ग्रेट. सेकेंड इंपॉर्टेंट, I am coming to it. So देखिए, I am going to take up every single query towards the end of it. Almost 95% queries आप सबकी खत्म हो जाएंगी. And अगर आपको इस टाइम पे कोई query आती है, take a note of it. We'll discuss towards the end. Okay. Now after class 12, दो इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए. दो की डिसीजंस हमें ले लेने चाहिए. हमें क्या करना है और कहां से करना है. अगर आपने ये डिसीजंस अभी तक नहीं लिए हैं, it is high time you should take these decisions. बहुत सारी बार बच्चे और पेरेंट्स इन डिसीजंस को डेफर करते हैं फॉर वेरियस रीजंस. लेकिन हमें यह बात समझनी होगी कि ये दो फंडामेंटल डिसीजन जितनी जल्दी आप लेंगे अपने करियर में उतना बेहतर है. व्हाट डू यू वांट टू डू एंड फ्रॉम वेयर. क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा आपको, मैं आपको एक टाइमलाइन के थ्रू ये समझाना चाहूंगा. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आई हैव स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आई हैव स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन माय सेशन. सो लेट मी टॉक अबाउट क्लास 12 स्टूडेंट फर्स्ट. वो बच्चे जो इस साल 12वीं में हैं और 2025 में बोर्ड का एग्जाम लिखने वाले हैं. आज हम मान के चल रहे हैं कि अगस्त आ गया, ऑलमोस्ट नेक्स्ट 4-5 दिन में. सो आई एम अज्यूमिंग वी आर ऑलरेडी इन अगस्त. तो अगस्त में आप 12th क्लास में हैं, सितंबर में आपका हाफ ईयरली आ जाएगा स्कूल का. नेक्स्ट मंथ प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं नवंबर या दिसंबर में, मान के चलिए दिसंबर से भी स्टार्ट होते हैं. सो इफेक्टिवली अगर मैं बात करता हूं प्री बोर्ड्स की, हम बात कर रहे हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. मेरे पास 4 महीने की विंडो बची है. दिसंबर के ऑनवर्ड्स तो आपका प्रेशर बोर्ड का शुरू हो जाएगा. प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, फिर जैन में आ जाएंगे प्रैक्टिकल्स एंड देन उसके बाद आ जाएगा बोर्ड एग्जाम. फेब इज व्हेन योर बोर्ड एग्जाम्स विल किक ऑफ एंड एंट्रेंस एग्जाम्स आर इन द मंथ ऑफ मे. सो आफ्टर द बोर्ड एग्जाम, मई जो समय है, बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं मार्च में और एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे टिपिकली मिड ऑफ मे में. 40 दिन की विंडो है, विच इज नॉट गुड एनफ. सो इफेक्टिवली क्लास 12 किड्स, how much time are you left with? You are left with 4 months to 4.5 months of your preparation. That is all you have. Students who are in class 11th, let's look at a timeline for them. Okay, so let's look at a timeline for students who are in class 11th. Okay, उनको लग रहा होगा कि उनके पास तो बहुत बड़ा समय अवेलेबल है. Let me first erase this and create a timeline for them. August is when you are in class 11th. सितंबर में आपका हाफ ईयरली आएगा. फरवरी में आप 11th क्लास के एग्जाम्स देंगे फाइनल्स के. मार्च में आप 12th क्लास में पहुंच जाएंगे एंड देन सितंबर में आप 12th क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम्स देंगे. नवंबर एंड दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे. तो अगर आप देखेंगे, हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पास समय बचा है अगस्त इस साल से लेके और नवंबर अगले साल तक, विच इज अ विंडो ऑफ अराउंड 15 मंथ्स. 15 महीने की विंडो है जिसके अंदर आपको 2 हाफ ईयरली एग्जाम देने हैं, 11th का और 12th का. आपको एक 11th का फाइनल एग्जाम देना है. आराम से इसमें से 2 महीने निकाल दीजिए. क्लास 11 स्टूडेंट्स के पास समय बचा है, क्लास 11th के पास समय बचा है अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स का. सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा. 11th पे समय है 12 महीने, 12th पे समय है 4 महीने का. एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इससे ज्यादा टाइमलाइन नहीं है आपके पास, इससे ज्यादा टाइमलाइन नहीं है. अगर आप इस अप्रोच को समझेंगे तो आप अपना करियर प्लानिंग का डिसीजन अकॉर्डिंगली लेंगे, नहीं तो आप इस डिसीजन को डेफर करते रहेंगे. एंड यही होता है, बच्चे पेरेंट्स मिलके आज नहीं अगले महीने सोचेंगे, 11th में नए सब्जेक्ट्स आए 12th में सोचेंगे, 12th में कहते हैं अभी तो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर आ रहा है, हाफ ईयरली के बाद सोचेंगे एंड ये डिसीजन डेफर हो जाता है. वन फंडामेंटल थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, आज के कॉन्टेक्स्ट में 12th के बाद अगर आप एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में लेना चाहते हैं, हर जगह पे एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना मैंडेटरी हो गया है. ये बात आपको समझनी पड़ेगी. सो बोर्ड मार्क्स अलोन डज नॉट हेल्प. यू हैव टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड, बट यू आल्सो हैव टू क्रैक एंट्रेंस एग्जाम एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट. Okay, so that is something which is there. So 2021 तक एडमिशंस के 2 ब्रॉड क्राइटेरिया थे. पहला एडमिशन का क्राइटेरिया होता था एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा होता था मेरिट बेस्ड. सो आई जस्ट स्पोक अबाउट इट. सो एडमिशन होते थे और मेरिट होते थे. पेरेंट्स विल एग्री, ड्यूरिंग आवर टाइम दिस वाज अ केस. लेकिन 2022 से ये क्राइटेरिया बदल गया. एंट्रेंस एग्जाम में कोई चेंज नहीं हुआ. लॉ, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, मास कॉम, जर्नलिज्म, जेई, नीट, इन सब के लिए आज भी एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसमें कोई चेंज नहीं है. लेकिन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया ही मोरलेस खत्म है. ऑलमोस्ट हर जगह पे अब मेरिट के बेस पे एडमिशन नहीं हो रहा. और एडमिशन किस बेसिस पे हो रहा है? एडमिशन हो रहा है
CUET के बेसिस पे, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, CUET के बेस पे एडमिशन हो रहा है। एंड CUET एक जरिया है, एक गेटवे है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन सब यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए आपको देना पड़ेगा CUET। और ऐसे सिर्फ ये नहीं, मैं कुछ और नाम भी आपके सामने ले जाऊंगा। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, टाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, देन उसके बाद आता है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए क्या देना पड़ेगा आपको? CUET देना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई CUET इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आप ह्यूमैनिटीज से हैं, आप PCM कर रहे हैं, PCB है, वॉट एवर इज द स्ट्रीम, यू विल हैव टू टेक CUET। किसी के लिए ये CUET एग्जाम प्लान A होगा, किसी के लिए ये प्लान B होगा, बट होगा जरूर, देना तो सबको पड़ेगा। एग्जाम्पल लेता हूं, उमंग वांटेड टू गो टू SRCC, उमंग रीच्ड SR। दक्ष, आई विल कम टू द एंड, टेक अ नोट ऑफ द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड, ओके। द टाइम फॉर द क्वेश्चन इज 11, 12, 10, प्लीज टेक योर हैंड डाउन। Okay, so what we are going to do is, so example लेते हैं उमंग गुप्ता का। उमंग reached SRCC with only 96% marks in class 12th। SRCC में जाने के लिए तो 99, 95 चाहिए होते थे, 99, 99.5। This reached at SRCC। वर्धा पहुंच गई LSR with only 85% marks in class 12th। LSR जिसकी कट ऑफ टिपिकली 100% जाती है। So what I'm trying to say is, so effectively to get admission into one of the top DU college, the first and the most important thing is now CUET, Common University Exam। एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं, just to give you, मैं आपको ना इस एग्जाम का पर्सोना बताना चाहता हूं। How big is this exam? 15 लाख बच्चों ने 2023 में रजिस्टर किया, 11 लाख बच्चों ने दिया। ये एग्जाम 23 कंट्रीज में कंडक्ट किया जाता है, इंडिया के बाहर, ओके। टेस्ट इज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही एजेंसी है जिसने नीट का एग्जाम कंडक्ट किया, बहुत ही चर्चा में है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का तो कोई और जरिया बचा ही नहीं है, CUET देना ही होगा, ओके। एग्जाम के अंदर 3 सेक्शंस आते हैं, मैं इसको थोड़ा सा टाइमली स्किप करना चाहूंगा, सो प्लीज बी क्विक। सो एग्जाम के अंदर 3 चीजें पूछी जाती है। नंबर 1 इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज इंग्लिश। इंग्लिश ये वो इंग्लिश नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। इसके अंदर प्रोज, पोएट्री, लिटरेचर नहीं पूछा जाता है। इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है? इसके अंदर बिजनेस इंग्लिश पूछी जाती है। एंड लेट मी टेल यू, सबसे कम टाइम, सबसे कम एनर्जी, सबसे कम एफर्ट लगता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जिसका नाम इंग्लिश है। एंड यही एक मेक और ब्रेक सब्जेक्ट बनने वाला है हर एंट्रेंस एग्जाम में। एप्टीट्यूड की फाउंडेशन है इंग्लिश, सो आप प्लीज इस पे जरूर ध्यान दीजिए। Okay. Second important thing is domain. Domain is what you are studying in class 12th and 11th. So accounts, eco, business studies, history, pol science, sociology, psychology, physics, chemistry, maths, whatever, जो भी सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को छोड़ के they are part of your domain subjects. एंड थर्ड सेक्शन इसमें आता है जर्नल टेस्ट का। जर्नल टेस्ट 4 चीजों को मिला के बनता है। नंबर 1 आता है GK, नंबर 2 आता है करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज बेसिकली मैथ्स विच इज अरिथमेटिक, एंड लास्ट इज रीजनिंग। सो 4 चीजों को मिला के एक सेक्शन बना दिया जिसका नाम क्या है? जर्नल टेस्ट, ओके। सो ये सेक्शन कितने आए? 3। सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज, सेक्शन नंबर 2 डोमेन, सेक्शन नंबर 3 जर्नल टेस्ट। पेपर कितने देने होंगे? ये तो 3 सेक्शंस हैं, कैटेगरीज हैं। पेपर आपको कितने होते होंगे? आपको 1 इंग्लिश का पेपर देना होगा, 4 डोमेन के पेपर देने हैं और 1 जर्नल टेस्ट का पेपर देना है। इसका मतलब पेपर आपको देने हैं टोटल 6, और इससे ज्यादा पेपर आप दे नहीं सकते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर कॉल्ड CUET. Now why I am saying this is the perfect combination? अगर आप ये ऑप्शंस को लेके चलते हैं, आपके सामने सारे रास्ते खुले हुए हैं। All options are available in front of you. Now let's quickly understand इस पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं। अंग्रेजी का पेपर का पैटर्न समझते हैं। इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं और टाइम मिलेगा 45 मिनट का। मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना होए। 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने हैं। कितने ऑप्शनल सब क्वेश्चन मिल गए आपको? 10। इसका मतलब 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। 40 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, 40 क्वेश्चन करने के लिए टाइम कितना मिला? 45 मिनट का। इसका मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम मिल गया? शायद 1 मिनट से ज्यादा मिला आपको, क्योंकि 40 क्वेश्चन करने हैं और 45 मिनट का टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मैं CUET एग्जाम लिखने गया, 40 क्वेश्चन सही करने के लिए मैंने अटेम्प्ट कुछ ज्यादा करे, कभी 45 करने पड़े, कभी मुझे 47 करने पड़े, कभी 50 के 50 अटेम्प्ट करे, 40 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड माय डियर किड्स, इसका मतलब एक चीज जो मैं आपको
सिखाना चाह रहा हूं इस स्लाइड पे कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए या तो 1 मिनट मिलेगा या 1 मिनट से कम टाइम मिलेगा. दैट इज द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द पेपर. सेकंड सेक्शन आता है डोमेन का. सिमिलर स्ट्रक्चर, 50 क्वेश्चन आएंगे, सेम एग्जैक्टली सेम. 40 करने हैं, एग्जैक्टली सेम. इसका मतलब 10 का ऑप्शन मिल गया आपको और 45 मिनट्स का टाइम है. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको ग्रेस टाइम मिलता है. कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6. अकाउंट्स, इको, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हमने बात कर ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लास्ट इज कंप्यूटर साइंस. तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको ग्रेस टाइम मिलता है. एंड थर्ड सेक्शन इसके अंदर आ जाता है जर्नल टेस्ट का. जर्नल टेस्ट के अंदर आते हैं 60 क्वेश्चन, 50 करने हैं और 60 मिनट टाइम. मोरल ऑफ द स्टोरी इज 1 मिनट या 1 मिनट से कम. क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? जी हां, ये पहला पेपर आप फेस करेंगे जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है. सो इसका मतलब आप गेस नहीं कर सकते. दिस पेपर कैरीज ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 एंड पॉजिटिव स्कोर ऑफ +5. सो सही करने पे 5 नंबर, गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा. सो वेरी डिफरेंट पेपर विच यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर. सो व्हाट इज इट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर? अगर मैं बोलूं इस जितना डेटा हमने अभी कंज्यूम किया, मैं आपको 3 कंक्लूजन्स डिराइव कर रहा हूं. आप प्लीज इन कंक्लूजन्स को अपने नोटपैड पे नोट करें और जरूर अच्छे से नोट करें. सबसे पहला कंक्लूजन नंबर 1, सेक्शन 1 ऑफ लैंग्वेज which is English, let's say, of CUET and section number 3 of journal test, इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो हमारे सामने जो रिजल्ट निकल के आया उसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट. मैं बात कर रहा हूं CUET से रिलेटेड, अभी हम CUET के टॉपिक पे हैं. CUET का सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज, CUET का सेक्शन नंबर 3 विच इज जर्नल टेस्ट. इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो रिजल्ट जो निकला उसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. सो इन दोनों सेक्शन को मिला के हम बोल रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि CUET 2 ब्रॉड सेक्शन का एग्जाम है. सेक्शन नंबर 1 एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3, एंड दूसरा डोमेन टेस्ट विच इज nothing but section 2. So I hope this is something which is very very clear. CUET is a paper of 2 broad section, aptitude test and domain test. ये क्लैरिटी क्या आपको हो गई है? सो आपको चैट बॉक्स में लिखना है CUET equals to 80 plus DT. So 80 plus DT. So the statement is CUET is equivalent to 80 and DT. चलिए लिखिए फटाफट. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. CUET इज इक्वल टू 80 प्लस DT डोमेन टेस्ट. यस, CUET इज इक्वल टू 80 प्लस DT. डन. यस, वेरी गुड. अभिवादन, वेरी नाइस लिपिका. CUET is equal to aptitude plus test, domain test. वेरी गुड. सो समथिंग विच इज वेरी वेरी फंडामेंटल, जो थर्ड कंक्लूजन में आपको यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं कि बोर्ड की तैयारी और CUET की तैयारी में बहुत डिफरेंसेस है. नाउ व्हाट आर दीज डिफरेंसेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो बोर्ड और इसकी तैयारी में, और ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इन डिफरेंसेस को. ये आपको अंडरस्टैंड, एग्जाम के पैटर्न को समझने और अंडरस्टैंड करने में काम आएंगे. नंबर 1, बोर्ड is primarily a subjective paper. We all know that. So board is a subjective paper. जबकि अगर मैं बात करता हूं CUET की, CUET is 100% ऑब्जेक्टिव. इसमें एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए हम सारी राम कहानी लिख के आते हैं. लेकिन CUET के अंदर देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग. बोर्ड में सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, लेकिन CUET के अंदर डिलीटेड सिलेबस भी आता है. NCERT is a Bible. So you have to go to the website of CUET. They have uploaded the official syllabus. I will share the link of the official website in the chat box. And please understand, कुछ चैप्टर्स NCERT किताब में है जो CBSE कहता है नहीं. That is called as deleted syllabus, and this deleted syllabus will be asked in CUET. So बोर्ड में आए या ना आए, CUET में जरूर आएगा. और आपकी तैयारी का गोल बोर्ड नहीं हो सकता. सिर्फ आपको बोर्ड की भी तैयारी करनी है, आपको CUET की भी तैयारी करनी है. That means deleted syllabus
इज इंपॉर्टेंट, पहले से ध्यान देना होगा। बोर्ड में मिलते हैं सिर्फ 3 मिनट एक क्वेश्चन को करने के लिए, सीयूईटी में मिलता है 1 मिनट या 1 मिनट से कम टाइम। हमने इस बात को चर्चा कर ली है। बोर्ड में प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल होते हैं, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स पेपर्स आप देख सकते हैं। सीयूईटी में अभी तक नहीं थे, इस साल पहली बार हाइब्रिड एग्जाम हुआ है। इससे पिछले बार तक, 2 बार तक, 2022 और 2023 में एग्जाम ऑनलाइन था, पेपर्स अवेलेबल नहीं होते थे। दिस ईयर वी हैव गॉट पेपर्स विद अस। नाउ वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो यहां पे आप समझें कि क्वेश्चंस का एक सेट पैटर्न होता है। दिस इज, आई विल से, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो बोर्ड के अंदर एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है आपको, जिसमें क्लैरिटी दी गई है कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर की क्या वेटेज है, 1 मार्कर कितने, 3 मार्कर, 5 मार्कर। लेकिन जब हम बात करते हैं सीयूईटी की, देयर इज नो वेटेज डिफाइंड, नो सेट पैटर्न, नो वेटेज टू एनी चैप्टर और एनी बुक। इसका मतलब हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड unimportant here. You have to do everything and your preparation should be in line with it. So आज के बाद अपने बुक में जो लगाते थे ना, स्टार बता देते थे, इंपॉर्टेंट बता दीजिए सर, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताओ, वही करूंगा, वो नहीं पूछना। अब तो सब करना है, क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ बोर्ड की नहीं, प्रिपरेशन इज फॉर द महा एग्जाम कॉल्ड सीयूईटी। सो वो नहीं करना है। सो यहां तक अगर हम आपको सबको समझ आ गया, तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, please write it in the chat box called CUET, all capitals. I've concluded CUET in the last 20 minutes. Yes, very good, very good, very good. You write, you remember. जो नहीं लिख रहा बच्चों, please इसको लिखें। ये सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। I'm going to share the video of this also with you, so don't worry. But वीडियो देखता कोई नहीं है, याद करोगे जो मैं याद करा रहा हूं, अभी लिखोगे, याद रहेगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया जी, वेरी नाइस सृष्टि, माधव, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू माय किड्स। ओके, ग्रेट शिवम। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 पे। सीयूटी दे क्यों रहे हैं? व्हाई इज सीयूटी आवर गोल? नो, नॉट एट ऑल। सीयूटी तो मेरा गोल था ही नहीं। गोल तो मैंने आपको सबसे पहला आपको लिखवाया, जो आपसे आपका सबसे पहला गोल मैंने लाइफ का सेट कर दिया, टॉप कॉलेज में जाने का गोल। तो सीयूटी तो मेरा गोल है ही नहीं, सीयूटी तो जरिया था। सीयूटी जरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का। एंड कैसे सीयूटी के आने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशनों में इंपैक्ट हुआ, चेंजेस आए, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो हाउ CUET exam impacted DU admission. So a quick fact check on that. Okay, so to get admission into one of the top colleges, CUET देना, DU में जाने के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, तो चाहे DU के टॉप कॉलेज में जाना है, चाहे मीडियोकर कॉलेज में, देना तो पड़ेगा CUET। अब हम समझते हैं कि DU के ऊपर फर्क क्या पड़ा CUET के आने से। सबसे पहले समझते हैं, ये डेटा है और मैं सारी की सारी आज जो डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, प्योरली डेटा बैक कर रहा हूं, पॉइंट के साथ कर रहा हूं, एंड देयर इज नो I'm not going to talk anything in the air, so it's all data backed discussion. So let's understand. So focus is Delhi University. This slide talks about Delhi University and the admission process. Okay, so 2021 में एडमिशंस कैसे होते थे DU के अंदर? मेरिट के बेस पे होते थे। कितने बच्चों ने अप्लाई किया? 2.87 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। कितनी सीट्स थी? 75 सीट्स। तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट वी आर सेइंग इज 26% बच्चों का सिलेक्शन होता था। दिस इज वन स्टैट्स। 2022 में CUET इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये पहला साल था CUET का। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 2.87 से बढ़ के हो गए 6.64 लाख, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, वी कैन से 2.5 गुना के आसपास हो गए। एंड सीट्स में कोई चेंज? नो, दे वर फ्लैट। सिलेक्शन रेशियो घट के हो गया 11%। ये डेटा कहां अवेलेबल है? आपको गूगल पे सर्च करना है, DU एप्लीकेंट्स 2022 थ्रू CUET, दिख जाएगा जी। 2023 CUET के एप्लीकेंट्स, DU के एप्लीकेंट्स बढ़ के हो गए 11.16 लाख। सिर्फ DU के एप्लीकेंट्स की बात हो रही है। सो तीसरे साल में 2.87 लाख बिकेम 11.16 लाख। आप देख रहे हैं कितनी रैपिड पेस से DU एप्लीकेंट्स बढ़ गए। सीट्स में कोई चेंज नहीं। क्या कॉलेज ऐड हुए? नहीं। क्या सीट्स ऐड हुई? नहीं। सो सिलेक्शन रेशियो फर्दर गिर के हो गया 6.7%। तो मैं आपको इस डेटा से 2-3 इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाह रहा हूं इस स्लाइड पे। नंबर 1, CUET के आने से एप्लीकेंट बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि CUET इज पोजिशन्ड एज वन नेशन, वन कंट्री, वन एग्जाम। हर गांव, हर जिले, हर कस्बे, हर शहर, हर जगह पे हर बच्चा जो 12th पास कर रहा है, वो एक ही एग्जाम के लिए एक कॉमन फॉर्म भर रहा है।
आपको एक कॉलेज में अप्लाई करना है, आपको 20 कॉलेज में अप्लाई करना है, फॉर्म एक ही भरना पड़ेगा, कोई एडिशनल फी नहीं देनी है। इसका मतलब जब बच्चे को सामने दिखते हैं सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए, वो सिलेक्शन ऑप्ट करते जाते हैं। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। सो जब कॉमन एग्जाम होने से एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ती गई, ये आपको समझना पड़ेगा, ये चेंज आ गया। एंड हु डज नॉट नो, डीयू इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज एंड ऑलमोस्ट द एजुकेशन इज हाईली हाईली सब्सिडाइज्ड, एंड ये ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है जो आप डीयू में पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं एक एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं चीजों को, तो आप देखेंगे जब 2025 में या 2026 में जब आप इन एग्जाम्स को लिखेंगे, डीयू के एप्लीकेंट 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख तक पहुंच जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट looks like the possible scenario. So one thing which I can conclude is getting admission into DU is becoming more and more difficult. हो रहा है ना? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं आपको डेटा के साथ प्रूव करता हूं ये हो क्या रहा है। मैं आपको अपने एक बच्चे की केस स्टडी दिखाना चाहूंगा यहां पे, एंड आपको समझाना चाहूंगा विच डायरेक्शन आर वी हेडिंग फॉर। सॉरी, सो okay, so which direction are we heading for? So I'm taking a case study of one of my students here. So one of my student appeared for CUT 2023, wanted to do psychology. Yes, I have some students sitting in my classroom today who wants to do psychology. So please dhyan dein. And this is not just example of psychology, it is applicable everywhere. Okay, so DU में जाना था. So let's look at her score. CUT का कितने मार्क्स का पेपर था? अंग्रेजी में कितने क्वेश्चन करने थे? 40। तो अंग्रेजी में 40 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 5 नंबर का, अगर आपको याद हो तो। पेपर कितने नंबर का हो गया? 200 मार्क्स का हो गया। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। सो हर पेपर 200 नंबर का, 200 में से 199.64, नोट करिए प्लीज इसको। ठीक है, इकोनॉमिक्स में 200 में से 200, एंटरप्रेन्योरशिप में 200 में से 198.8, पॉलिटिकल साइंस में 200 में से 200। सो डीयू में जाने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या बोलता है? डीयू की एलिजिबिलिटी प्रोसेस, आपको इंग्लिश 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट, तो इसका लैंग्वेज तो मैंडेटरी हो गया, लिया ही जाएगा, प्लस बेस्ट ऑफ 3 क्या लेना है? तो बेस्ट ऑफ 3 हो गया 1, 2 एंड 3 फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब इसका स्कोर बन गया, हमारे बच्चे का स्कोर बना था 798.5, 798.5 upon 800. Can you please take a note of this in your notepad? 798.5 upon 800. क्या ये खराब स्कोर है? कैन आई गेट सम रिस्पॉन्सेज? इज इट अ गुड स्कोर और अ बैड स्कोर? कैन यू रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? फटाफट बताओ, अच्छा है कि बुरा है? 10 out of 10, वेरी गुड। बिल्कुल, स्कोर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, स्कोर में तो कोई दिक्कत नहीं है, गुड स्कोर है जी, ये वेरी वेरी गुड स्कोर है। बट इन स्पाइट ऑफ गेटिंग अ गुड स्कोर लाइक दिस, वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज नॉट एबल टू गेट अ सीट इन द साइकोलॉजी के लिए जो नंबर 1 कॉलेज है। द नंबर 1 कॉलेज फॉर साइकोलॉजी इज LSR, एंड LSR में जाने के लिए टोटल सीट्स थी 25। दिस स्टूडेंट गॉट अ रैंक ऑफ 37। तो होता क्या है डीयू के अंदर? डीयू हर कोर्स की लिस्ट निकालता है, तो साइकोलॉजी के लिए जितने बच्चों ने अप्लाई किया, 1.5 लाख 2 लाख, हर एक की एक मेरिट लिस्ट निकल गई। साइकोलॉजी की मेरिट लिस्ट में इस बच्चे का रैंक 37 था, और LSR के एडमिशन 25 पे क्लोज हो गए। डीयू में कितनी सीट्स हैं LSR में? 25। इसका मतलब एडमिशन क्लोज हो गए। सो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग अ स्कोर लाइक दिस, she was not able to get a seat in the number 1 college. So that's problem number 1. Number 2, you have to understand, अगर 37 रैंक आया जिसमें 1.5 नंबर कम है 800 में इस बच्चे के, इसका मतलब 1.5 नंबर पे 36 बच्चे इससे आगे रहे। सो दैट इज सेकेंड कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ आउट ऑफ इट। ओके, इट्स लुक लाइक आई हैव सक्सीडेड इन स्केयरिंग यू टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। एम आई राइट? क्या मैं अपने अटेम्प्ट में कामयाब हुआ हूं? हैव आई स्केयर्ड यू टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल? यस और नो? डर गए कि नहीं? हाँ के ना? डेफिनेटली यस, यस। लिपिका भी डर गई, ग्रेट, वेरी गुड। बाकी सब बच्चे डर गए? कोशिश मैंने पूरी करी थी। लेट मी सी एज ए टीचर आई हैव सक्सीडेड और नॉट। आप भी बोलोगे हमें ये क्या मतलब डराने बुलाया है या कुछ सिखाने बुलाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ओके, यतेंद्र नहीं डरा। उमंग है, लड़के थोड़े बोल्ड लग रहे हैं अपने को ग्रुप में। तो नहीं, इंटेंट बिल्कुल डराने की नहीं है, इंटेंट धमकाने की नहीं है। इंटेंट है आपको सही
पर्सपेक्टिव दिखाने की। माई इंटेंट इज वेरी सिंपल, कैन आई शो यू द रियलिटी। ये रियलिटी आपसे आज छुपा देगा कोई, कल छुपा देगा। जब बोर्ड के रिजल्ट्स आएंगे, आप कहोगे मेरा सीयूटी एग्जाम अच्छा हुआ और सिलेक्शन नहीं होगा, फिर देन व्हाट विल हैपन? विल स्टिल नॉट गेट सिलेक्टेड। एंड उस दिन आप ये सोचेंगे और उस दिन आप रिसर्च करेंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्शन। उस दिन आप रियलाइज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। आपको मैं फैक्चुअल स्टेटमेंट जो समझाना चाह रहा हूं, हमारे देश में टॉप यूनिवर्सिटीज कम हैं, हमारे देश में अच्छे कॉलेज कम हैं, उनमें सीट्स कम हैं, एंड टॉप ऑफ इट रिजर्वेशन है। सो दैट मीन्स it is important for you to understand that you have to create alternate paths. You have to explore options. You have to explore colleges, explore courses, explore, multiple options for each one of you. You have to create plan A, plan B and plan C. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या बातें कर रहे हो आप, अभी तो हमने लाइफ में प्लान ए नहीं सोचा और आप अभी प्लान बी और सी की बातें पे पहुंच गए हो। यस बच्चों, I'm talking to you as a parent here. If you don't create your plan A, plan B, plan C, it is not going to work out. I have been counseling, mentoring, teaching kids पिछले 24 साल से कर रहा हूं, और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे ज्यादातर करते हैं और बार बार करते हैं, वो यही करते हैं कि वो लिखते हैं मैं ये करने जा रहा हूं, I want to do BCom ऑनर्स। ये नहीं सोचते कि अगर बीकॉम ऑनर्स एक अच्छे कॉलेज से नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। ये सोचा ही नहीं है। सोचा मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं और मान लिया कि मेरा बीकॉम एडमिशन में हो गया। कोई बच्चा कह रहा है मैं करूंगा एनएलएसआईयू बैंगलोर, सोच रहे हैं एनएलएसआईयू बैंगलोर और मान लिया कि मेरा एडमिशन हो गया एनएलएसआईयू बैंगलोर में। ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे एडमिशन सीट्स खाली पड़ी हैं, कॉलेज बिल्कुल बाएं फैला के आपको वेलकम करने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं होता। थिंग्स आर नॉट दैट रोजी, एंड दिस रियलिटी इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्विकली, वेरी वेरी स्विफ्टली। सो मैं दोबारा इस स्टेटमेंट को बोलूंगा, आप हर बच्चे को, हर पेरेंट को अपने बच्चे के लिए प्लान ए बनाना है, प्लान बी बनाना है, प्लान सी बनाना है, एंड इन केस यू नीड सपोर्ट वी आर अवेलेबल। बट अगर हम नहीं बनाएंगे, हमने अपने बच्चे का फ्यूचर करियर प्लान सिक्योर नहीं किया है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लियर इन माई माइंड। ओके, एंड इसीलिए अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, एक और चीज है जो बच्चे पेरेंट्स ऐसा क्यों नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं हमें प्लान ए ही क्लियर नहीं है। ये मान के चल रहे हैं कि हमने अभी सोचा नहीं है कि लॉ करना है, मैनेजमेंट करना है, बीबीए करना है, इकोनॉमिक्स करना है। मेरा बच्चा कंफ्यूज्ड है, डिसाइडेड नहीं है, श्योर नहीं है। लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन टू दिस। 12वीं के बाद हर बच्चे के पास सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं, कोई चौथा रास्ता है ही नहीं। तो आप कंफ्यूज हैं किस बात पे, मैं ये आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हर बच्चे के सामने 3 ही रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 जो जेई के लिए है, जो बच्चे पीसीएम लेते हैं और क्लियर है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, वो जेई की तैयारी करें। वो बच्चे जिन्होंने पीसीएम लिया है लेकिन जेई के लिए टारगेट नहीं कर रहे हैं, नहीं इंटरेस्टेड हैं, वो इसके लिए नहीं करेंगे। वो किसकी तैयारी करेंगे? एप्टीट्यूड की तैयारी करें। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने पीसीबी लिया है और नीट की तैयारी करना चाहते और सीरियस है इंजीनियरिंग इसकी नीट की तैयारी को लेके, वो नीट पे फोकस करें। वो बच्चे जिन्होंने नीट के लिए पीसीबी तो ले लिया लेकिन नीट नहीं करना है, दे आर अगेन गोइंग टू फोकस ऑन एप्टीट्यूड। एंड थर्ड कैटेगरी इज द एप्टीट्यूड टेस्ट कैटेगरी। जो बच्चा जेई की तैयारी नहीं कर रहा है, वो बच्चा जो नीट की तैयारी नहीं कर रहा, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा और कोई रास्ता है ही नहीं। देयर इज नो अदर पाथवे अवेलेबल टू यू। इसका मतलब हर क्लास 12 के बच्चे के पास में 3 ही रास्ते बच गए हैं, या तो जेई की तरफ जाएं, या नीट की तरफ जाएं, या एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ जाएं। तो कंफ्यूजन है कहां? कंफ्यूजन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं है, प्रॉब्लम है समझी नहीं है सिचुएशन ठीक से। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग एप्टीट्यूड टेस्ट बिकम्स अ pathway to everything. You want to do commerce, economics, DU जाना है, एप्टीट्यूड टेस्ट। मैनेजमेंट की तरफ जाना है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इकोनॉमिक्स करनी है, कॉमर्स, एप्टीट्यूड टेस्ट। लॉ करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट। हॉस्पिटैलिटी में जाना है, एप्टीट्यूड टेस्ट। मास कॉम जर्नलिज्म करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज रेलेवेंट एंड रिक्वायर्ड एवरीवेयर। एंड आई वांट टू गिव यू सम करियर चॉइसेस। मैं आपके साथ आज कुछ
एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करना चाहूंगा कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए कैसे ऑल्टरनेट पाथ्स, कैसे ऑल्टरनेट ऑप्शंस खोलते हैं। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था सीयूईटी इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डोमेन टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट इज नथिंग बट इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी तो सीयूईटी के थ्रू करेंगे ही करेंगे, करनी ही करनी है। सो कैसे एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी आपके सामने एक नहीं 10 दरवाजे खोलता है, इज व्हाट आई वांट टू गिव यू। सो लेट मी पिक अप सम करियर चॉइसेस एंड दो इंपॉर्टेंट करियर, जैसे मैंने आज इस थीम में भी बात कर रहे थे, मैं आपसे बात करूंगा। वन करियर चॉइस इज लॉ एंड द अदर करियर चॉइस इज मैनेजमेंट। What is it all about? So let me talk about law. One of the most fantastic, exciting career choice. Not a great career choice when I was a kid. है ना, जब मैं बच्चा था तो it was not a very very exciting option. Today law has become one of the very very exciting choices. Why? NLSIU Bangalore, one of the student was talking about, मैं उसी का एग्जाम्पल लेके आया हूं आपके सामने। NLSIU Bangalore के अंदर 49% बच्चे जो गए वो साइंस के थे। एनएलएसआईयू बैंगलोर के अंदर 29% बच्चे जो गए वो कॉमर्स के थे। तो इसका मतलब आज साइंस का बच्चा भी लॉ करने जा रहा है, कॉमर्स का बच्चा भी लॉ करने जा रहा है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा तो शुरू से लॉ करता ही करता था। This was not the reality during our time. So during our time, it was only the humanities थे जो लॉ की तरफ जाते थे। आज साइंस का बच्चा भी करता है, कॉमर्स भी करता है, ह्यूमैनिटीज भी करता है। इसका मतलब ये है द करियर इज इन डिमांड, द करियर हैज पिक्ड अप स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल एकेडमिक स्ट्रीम। राइट दीज एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम कॉल्ड क्लैट। तो बटलर इज अ हॉलीवुड एक्टर। आई एम ट्राइंग टू गिव यू डाइवर्सिटी। लॉ करने के बाद क्यों मैंने लॉ पिक किया आज के लिए, क्यों मैंने मैनेजमेंट पिक किया आज के सेशन के लिए, क्योंकि ये दोनों इतने डाइवर्सिफाइड करियर चॉइसेस हैं कि लॉ करने के बाद या मैनेजमेंट के बाद आप मल्टीपल स्ट्रीम्स आपके सामने। एक एग्जांपल ये, बटलर इज अ हॉलीवुड एक्टर, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, द करंट वाइस प्रेसिडेंट मिस कमला हैरिस, ऑल ऑफ देम आर लॉ ग्रेजुएट। So, Mr. Nelson Mandela, he's a social activist, Mahatma Gandhi ji, Motilal Nehru ji, Jawaharlal Nehru ji. This gentleman is he's a journalist. Hey, Rajdeep sir, India Today TV network, 9 o'clock prime time, you can watch. He's a journalist. What has he done? Law. कहाँ से? Oxford Law School से. This gentleman is a stand-up comedian. What has he done? He has done law. कहाँ से? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लॉ गया वो जमाना जब हम बात करते थे लॉ का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी और उसमें। नो, लॉ इज नॉट जस्ट अबाउट कोर्ट रूम ड्रामा। सो लॉ इज बियॉन्ड दैट ऑल्सो। सो law is about litigation. Law is litigation beyond civil and criminal. Law is about corporate law. आज आप मल्टीनेशनल कंपनीज में एक लीगल डिपार्टमेंट है, यू कैन बिकम अ लीगल काउंसिल ओवर देयर एंड इट्स अ फैंटास्टिक ऑप्शन। यू सिट इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस, गिव लीगल ओपिनियन ऑन द मैटर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वेरी एक्साइटिंग ऑप्शन इज जुडिशियल सर्विसेज। यू कैन बिकम अ जज एज अर्ली एज 23, 24, 25। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर मैं बात करता हूँ, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्टर 12 में, अगर गुड़गांव की बात करता हूँ सोना रोड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके अंदर आप देखेंगे जजेस हैं जो कि 24 और 26 में हैं, और ऐसे एक नहीं मल्टीपल जजेस हैं। ठीक है, 12वीं हमारे बच्चों की क्लियर हो जाती है 18 साल में। 17 और 18 इज व्हेन यू क्लियर क्लास 12th। फिर उसके बाद 5 साल का लॉ का कोर्स, 18 + 5 दैट टेक्स यू टू 23। एंड उसके बाद आपको सिर्फ एक एग्जाम लिखना है जिसे बोलते हैं लोअर जुडिशियल सर्विसेज का, और आप कर सकते हैं लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लॉ करने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड स्केल ऑफ सैलरी, फेम एंड एवरीथिंग व्हाट इज अटैच्ड। आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ट्रस्ट हैं, फाउंडेशन हैं, जहां पे लॉयर्स काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं और उनकी काफी है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज अनदर एरिया। पब्लिक पॉलिसी डोमेन इज वेरी एक्साइटिंग एरिया। सो ये सब फील्ड्स हैं जिसमें लॉयर्स काम करते हैं। ठीक है, क्लैट एंड एलिट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हमारे देश में 26 नेशनल लॉ स्कूल्स को जाने के लिए होता है क्लैट का एग्जाम, एंड एक नेशनल लॉ स्कूल है जिसका नाम है NLU दिल्ली, जिसके लिए होता है एलिट का एग्जाम। तो टोटल 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, क्लैट एंड एलिट। ये दोनों एग्जाम दिसंबर में होते हैं। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। अगर आपके दिमाग में लॉ है, आप समझिए ये दोनों एग्जाम दिसंबर में होते हैं। 12th क्लास के बच्चे इस दिसंबर में इस एग्जाम को लिखेंगे, 11th क्लास के बच्चे अगले साल दिसंबर में लिखेंगे जब आप प्री बोर्ड में फंसे होते हैं। राइट, इसके अलावा भी कुछ अच्छे एग्जाम्स हैं। टॉप कॉलेज का मैं बात कर रहा हूं, टॉप ऑप्शंस इंडिया की, महाराष्ट्र CET की बात कर रहे हैं, स्लैट की बात कर रहे हैं, सिम्बियोसिस
लॉर्ड मिशन टेस्ट एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं. तो दीज आर फ्यू वेरी वेरी प्रोमिनेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन आवर कंट्री. और अगर अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो आपको करियर को लेके कोई चिंता नहीं करनी, प्लेसमेंट्स को लेके चिंता नहीं करनी, पीयर ग्रुप को लेके कोई चिंता नहीं करनी. इसी तरीके से हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की. प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छी हैं, हर तरीके की कंपनी लॉ ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करती है. इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, एक बैंक है. अगर हम देखते हैं आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंसल्टिंग कंपनी है, लीगल फर्म्स, corporates, every single company recruit lawyers. Scale of salary is fantastic. And 18 लाख से लेके 20-22 लाख तक का आजकल का पैकेज चल रहा है ऑन एन एवरेज. 5 चीजें पूछी जाती हैं लॉ के एग्जाम में. नंबर 1 पूछा जाता है इंग्लिश, सीयूटी सेक्शन नंबर 1. नंबर 2 पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सीयूटी सेक्शन नंबर 3. नंबर 3 पूछा जाता है लॉजिकल रीजनिंग, सीयूटी सेक्शन नंबर 3. नंबर 4 जीके प्लस करंट अफेयर्स, सीयूटी सेक्शन नंबर 3. इसका मतलब पहले 5 में पहले 4 तो सीयूटी में पूछे जा रहे हैं. लीगल रीजनिंग एक एडिशनल सेक्शन है, इसमें देयर इज नथिंग लीगल अबाउट इट. इट इज अ सेक्शन ऑन रीजनिंग. द सेक्शन इज ऑन रीजनिंग. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आप देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं 120 क्वेश्चन 120 मिनट. इसका मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलेगा. +1 - 1/4 इज द मार्किंग स्कीम. सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. ये पेपर उन बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन है जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है. ध्यान दीजिएगा इस बात पे. सो 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 120 में से. 12/112 इज 10% वेटेज. इसका मतलब ये वो पेपर है जिसमें मैथ्स की वेटेज सिर्फ 10% है. सो वो बच्चे जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मैथ से डर लगता है, वेरी गुड विद इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये पेपर आप जरूर टारगेट कर सकते हैं. इट इज समथिंग टू बी लुक्ड एट. सो प्लीज हैव अ फोकस्ड अप्रोच ऑन दिस. I hope it is very very clear. Can you quickly type CLAT in the chat box? CLAT. I'll come to the next this thing now. तो CLAT लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, CLAT. एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, आप चाहे लॉ नहीं करना चाहते, लॉ इज एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट. ज्यादातर सारे एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट एक जैसे आपको दिखेंगे. लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होगा, बिल्कुल होगा, हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स काफी हद तक मिलते जुलते हैं. CLAT वेरी गुड. तो वो बच्चे जो शायद लॉ नहीं करना चाह रहे उन्हें भी ये समझना है, जो बच्चे मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा, जो बच्चे सीयूटी करना चाह रहे हैं, एग्जाम्स के पैटर्न को समझिए और आप रिलेट कर पाएंगे. इससे आपको ये भी समझ आएगा कि आपका पोटेंशियल कहां है, आपका इंटरेस्ट कहां पे है. ग्रेट 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 तनु. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. वेरी वेरी एक्साइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट करियर चॉइस, वन ऑफ द मोस्ट. तो आई विल से दिस इज वन सच करियर जिसके लिए काफी ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं. हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, one of the highest number of applicants today are for management as a exam. Okay, so MBA, Masters in Business Administration, MBA is a very very in demand career. ऐसा कहा जाता है कि जब कुछ समझ ना आए तो बस एक ही उपाय, बच्चे को MBA करा दीजिए, उसका बेड़ा पार हो जाएगा. MBA is a numero uno career choice. इसको मैं नंबर 1 बुला रहा हूँ. अमिताभ बच्चन है ये करियर का. क्यों मैं इसको अमिताभ बच्चन कह रहा हूँ? क्योंकि ड्यूरिंग आवर टाइम दिस वाज आल्सो वन ऑफ द करियर इन डिमांड. सो मुझे भी ऐसी एडवाइस मिलती थी, बेटा IIM जाइए, बहुत अच्छा करियर चॉइस. आज भी IIMs आर इन ग्रेट डिमांड. इसका मतलब ये एक ऐसा करियर है, ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि हमेशा डिमांड में है. इट इज नेवर ऑब्सोलीट, इट इज नेवर आउट ऑफ डिमांड. व्हाई? ऐसा इसमें क्या है कि MBA इज नेवर आउट ऑफ डिमांड? इसको समझना जरूरी है. आप सब शार्क टैंक देखते हैं, आप सब एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं. आज हर बच्चा चाहता है कि मैं 12वीं के बाद ही बिजनेस कर लूं, मैं ग्रेजुएशन के बाद ही बिजनेस कर लूं. एंड हमारे दिमाग में ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जो इसका कीड़ा है, ये बग इज देयर इन एवरीवन कि खुद का कुछ करना है. ठीक है, MBA आपको उस खुद का कुछ करने के लिए भी डायरेक्शन लेता है. MBA आपको सिखाता है कैसे किसी बिजनेस को चलाना है, कैसे किसी बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे किसी बिजनेस को एफिशिएंट बनाना है, कैसे किसी बिजनेस को स्केल करना है. सो इट इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो. इट इज अबाउट लर्निंग हाउ बिजनेसेस आर क्रिएटेड, रन, मैनेज एंड ग्रो. ऐसा कैसे करता है ये? क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन, एज ए पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन आप पढ़ते हैं, मार्केटिंग भी पढ़ते हैं, HR भी पढ़ते हैं, फाइनेंस भी पढ़ते हैं, ऑपरेशंस भी पढ़ते हैं, सिस्टम्स भी पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी भी पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन पढ़ते हैं. तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, or you study all of them as a part of your subjects, and that is how you equip
and you get equipped with this kind of a knowledge, right? So MBA is something which is always in demand. Chat GPT आए या Bard आए, this is not going to go anywhere. Barter system चलता था, it is about business, ancient age, prehistoric time. So that is what we are talking about. Business तो हमेशा चलेगा, कभी obsolete नहीं हो सकता. Now business MBA के लिए इतनी demand है क्यों? एक another reason, दो broad perspective. Number one, placement. एमबीए करते ही आपकी सैलरी ग्रेजुएशन के मुकाबले में 2 से 3 गुना बेहतर हो जाती है. आपको बेहतर प्लेसमेंट, बेहतर पैकेज मिलता है. ये एक बेसिक फाउंडेशन है. एमबीए इज अबाउट बेटर प्लेसमेंट. दैट इज व्हाई एवरीवन सेड कि ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए जरूर कर लो. ठीक है. दूसरा, जब पैसे अच्छे मिलते हैं, इसका मतलब आपको प्रोफाइल, योर प्रोफाइल इंप्रूव्स, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद जॉब की तरफ जाते हैं, तो यू विल स्टार्ट विद एट ए जूनियर एनालिस्ट या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं आप. तो जूनियर एनालिस्ट, फिर सीनियर एनालिस्ट, फिर जूनियर लीड, फिर सीनियर लीड और फिर मैनेजर. तो ये यहां से ऊपर मैनेजर लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपको टाइम लग गया 6, 7, 8, 10 साल लग जाते हैं अगर आपने क्वालिफिकेशन नहीं है, राइट. एंड एक बच्चा अगर एमबीए करता है और स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ चला जाता है, एंड यू स्ट्रेट अवे रीच द मैनेजरियल लेवल, आप हायर लेवल पे पहुंचते हैं. तो एमबीए करने का फायदा क्या है? बेटर सैलरी, बेटर प्रोफाइल, बेटर पैकेज. सो ये बेनिफिट्स हैं, एंड दैट इज व्हाई एवरीवन सेड जब कुछ समझ ना आए तो एक ही उपाय, एमबीए. ठीक है. एमबीए करने के हमारे देश में दो रास्ते हैं. एक रास्ता है कन्वेंशनल रास्ता, जो पुराने टाइम पे भी था. पेरेंट्स विल एग्री, 12th करिए, 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, देन उसके बाद ग्रेजुएशन करिए, और ग्रेजुएशन के बाद एक और एंट्रेंस एग्जाम दीजिए जिसका नाम कैट है, और उसके बाद आप जा सकते हैं. लेकिन दूसरा रास्ता, 12th करते हैं, 12th के बाद हम एक एग्जाम देते हैं आईपीएम का, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट का नया, ये दिस अ न्यू पाथवे विच हैज बीन क्रिएटेड, एंड आईपीएम का एग्जाम दीजिए और आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं. आपको 2 डिग्रीज मिलती हैं इसके अंदर. आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिली, बीबीए या बीए की, प्लस एमबीए की डिग्री मिली. सो यू गेट अ डुअल डिग्री. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम? कैन यू रिपीट दिस प्रोग्राम नेम इन द चैट बॉक्स? आई वांट यू टू राइट दिस नेम, आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, आईपीएम. आईएमपी नहीं भाई भूमि, आईपीएम. हाँ, आई कैपिटल, पी कैपिटल, एम कैपिटल, आईपीएफ लिख दिया. लो जी, ये क्या कर रहे हो भाई? आईपीएम. ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. इट्स ए 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. इंदौर, रोहतक, बोधगया, जम्मू, रांची, है ना. सो 5 कॉलेजेस हैं जो आज की डेट में ये ऑफर करते हैं. यस भूमि, आई एम कमिंग टू इट. यस, आई एम बैंगलोर अभी जो ऑफर कर रहा है वो तो ऑनलाइन प्रोग्राम है. हम अभी ऑफलाइन प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं. आज की डेट में 5 कॉलेज हैं जो इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं ऑफलाइन फॉर्मेट में. और आने वाले टाइम में इस प्रोग्राम की खासियत क्या है? इस प्रोग्राम की खासियत क्या है कि ये 5 साल का प्रोग्राम जो है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है 3 साल बाद आप एग्जिट कर सकते हैं. इसका मतलब अगर 3 साल के बाद आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप कहते हैं कि मुझे तो एमबीए करनी ही नहीं है, मुझे तो सीए करनी है, मुझे सीडीएस में जाना है, मुझे इंडिया के बाहर जाना है. सो ये एक नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री की तरह है जो आप बीकॉम करके लेंगे या बीए करके लेंगे या बीएससी या बीटेक करके लेंगे. सो 3 साल बाद आप एग्जिट कर सकते हैं विद ए ग्रेजुएट डिग्री. आप किसी सरकारी जॉब के लिए, बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. सो इट्स ए रेगुलर प्रोग्राम विच यू कैन लुक एट. इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर टू लर्न. इसका प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं. इंदौर की प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज गया 1 करोड़ 14 लाख का. एवरेज सैलरी लगी है 30 लाख की. एंड दिस नॉट जस्ट इंदौर, इंदौर इज द बेस्ट ऑप्शन टुडे. इट स्टार्टेड इन 2011. सबसे पुराना प्रोग्राम इंदौर का है, इसलिए शायद सबसे अच्छी सैलरी इसकी है, सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स इसकी हैं. लेकिन अगर मैं बाकी की भी बात करूं तो खराब नहीं है सिचुएशन. एंड बैंगलोर इज कमिंग अप विद दिस प्रोग्राम. सो ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम्स है 5 year के, ये काफी इन डिमांड है. हर साल 2-3 नए कॉलेज आ जाते हैं. बैंगलोर ने इस साल ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, और अगले साल से बैंगलोर जो है ऑफलाइन प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है. द काइंड ऑफ न्यूज वी आर गेटिंग, आई एम बैंगलोर इज गोइंग टू किक ऑफ 4 year undergraduate program starting in 2025 for economics, data sciences, behavior sciences and sustainability. So imagine करिए आप सब बच्चों के पास
इंडिया का एक नंबर 1 कॉलेज, एशिया का, वर्ल्ड का टॉप रैंकिंग कॉलेज एक ऑप्शन देने वाला है राइट आफ्टर क्लास 12th, एंड ये ऑप्शन कोई मिस नहीं करना चाहेगा. सो इफ आई लुक एट द अदर ऑप्शंस आल्सो, दे आर वेरी वेरी एक्साइटिंग. लुक एट एवरेज. इंदौर इज एट 30, रोहतक का 18, एवरेज की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा हूं. रांची की एवरेज 17, जम्मू की 16, बोधगया की 16.5. ये सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. ये सारी एवरेज सैलरीज मैंने इनकी वेबसाइट से पिक करी हैं, एंड देयर इज नो मोटिवेशन फॉर देम टू राइट द change the structure or something. They're all government colleges. They can't write anything wrong. So please understand, kids, this is something which is a very very exciting option. You just cannot escape it. It बहुत ही fantastic option getting into IIMS. Similarly, IFT देखिए, Indian Institute of Foreign Trade, one of the top options. It's a great college in our country to do MBA. IFT started this particular program. Nalsar Hyderabad, the number 2 college for law, has started this particular program for management. Nirma offers this particular program. Manipal offers this particular program. So हर साल इस particular program की जो मान्यता है बढ़ती जा रही है, and lot more and more this thing are coming into the picture. एग्जाम में क्या पूछा जाता है, बहुत ही फैंटास्टिक. ये क्लासिकल स्लाइड है, आंख खुल जाएगी आपकी. माय डियर पेरेंट्स, इसको अगर आपने देखा और समझा और नोट कर लिया, यू विल रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट. इंदौर के पेपर में दो चीजें पूछी जाती हैं, मैथ्स एंड इंग्लिश. सो दिस इज मैथ्स एंड दिस इज इंग्लिश. सो दो चीजें. मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2. सेक्शन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 2 इज शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस के 30 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का. टोटल मार्क्स बन गए 120. कोई शक या सवाल? सिंपल है. सो 30 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 120 नंबर का पेपर हो गया. मैथ्स के दूसरा सेक्शन आता है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है, शॉर्ट आंसर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, पेपर बन गया 60 नंबर का. थर्ड सेक्शन आता है, थर्ड पेपर है, इसके अंदर है वर्बल एबिलिटी का एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं. इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी. एमसीक्यू का मतलब नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. 45 क्वेश्चंस, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 180 मार्क्स का पेपर. टोटल पेपर बन गया 90 क्वेश्चन का, टोटल मार्क्स बन गए 360. आई होप दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी क्लियर. बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है इसको. ठीक है. अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 120 नंबर का जो पेपर, जो कि मैथ्स जिसे कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, इसमें क्लियर करने के लिए 2023 में चाहिए थे सिर्फ 39 मार्क्स. 39 marks out of 120. We are talking about a percentage of 32. सेकेंड सेक्शन को क्लियर करने के लिए चाहिए थे 12 नंबर अपॉन 160. दैट मीन्स अ परसेंटेज ऑफ 20. थर्ड सेक्शन इंग्लिश को क्लियर करने के लिए चाहिए थे 125 मार्क्स आउट ऑफ 180. दैट मीन्स 69.4%. इसका मतलब दीज आर द कट ऑफ. 32%, 20% पे मैथ्स में एग्जाम पेपर क्लियर हो रहा है. एंड हम डर रहे हैं ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, ये तो बहुत आईआईटी वाले बच्चे क्लियर करते हैं, ऐसा है और वैसा है. सब कही सुनी बातें, डेटा पॉइंट पे कोई बात नहीं कर रहा. 39 क्वेश्चन सही करने का मतलब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. एक क्वेश्चन 4 नंबर का है. अगर आपने 10 क्वेश्चन, कितने में से? 30 में से. अगर आपने 10 क्वेश्चन 30 में से सही कर दिए तो आपका पेपर IIM इंदौर का क्लियर हो जाएगा. क्या हम 10 क्वेश्चन भी 30 में क्लियर करने की क्षमता नहीं रखते? और 10 क्वेश्चन नहीं, 30 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपने 7th 8th 9th 10th में कर रहे हैं. कोई इसमें डाउट ही नहीं है, एरिथमेटिक है. प्रॉब्लम पेपर की नहीं है, प्रॉब्लम पैटर्न की नहीं है, प्रॉब्लम डिफिकल्टी लेवल की नहीं है, प्रॉब्लम फीस की नहीं है. फीस तो सारी बैंक देने वाला है आपकी पढ़ाई लिखाई की. प्रॉब्लम है अवेयरनेस की, प्रॉब्लम है नॉलेज की, प्रॉब्लम है सोचेगा कौन. सो वो लड़ाई लड़ने जा रहे हो, लेकिन जंग लड़ने से पहले जंग की तैयारी पूरी है कि नहीं है, ये समझना है आपको. सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, प्लीज स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. इट इज हाई टाइम. अगर नहीं सोचेंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे. आईपीएम इज अ ग्रेट ऑप्शन. आईपीएम 5 साल वाला प्रोग्राम था. मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा 3 साल वाले ऑप्शन भी. जब हम 5 साल की बात करते हैं जिसमें आपको 2 डिग्री मिलती हैं, 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 2 साल का एमबीए प्रोग्राम, इनको फ्यूज किया गया. ठीक है. अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम सिर्फ वैनिला 3 साल वाले प्रोग्राम्स की बात करते हैं, इन्हें बीबीए भी कहते हैं, बीएमएस भी कहते हैं, बीबीए भी कहते हैं. अगर आपने आईएम की तैयारी करी ना 5 साल वाले प्रोग्राम की, सबकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो. सबकी तैयारी. इसमें क्या ऑप्शंस है आपके पास में? दिल्ली यूनिवर्सिटी,
बीएमएस प्रोग्राम है, बीएमएस, बीएफआई, बीबी। डीयू का ये ऑप्शन नोट करिए आप, अगर आप नोट करिए, अगर हिम्मत बची है तो। इफ यू आर नॉट एग्जॉस्टेड, नोट करिए इस कॉलेज को, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, इसके ऊपर रिसर्च करिए। मैं आपको बता रहा हूं, इससे अच्छा ऑप्शन डीयू में है ही नहीं। ये कॉलेज एसआरसीसी और सेंट स्टीफंस की टक्कर का है। वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल। अगर आप यहां पहुंच गए, या तो इसके बाद आप किसी टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंच जाएंगे, किसी टॉप कंसल्टिंग कंपनी में पहुंच जाएंगे, या फिर आप किसी टॉप एमबीए करने के लिए किसी टॉप 20 स्कूल में पहुंच जाएंगे। सो वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शंस। तो अगर आपको मैनेजमेंट एजुकेशन परस्यू करनी है, दिल्ली एनसीआर में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रोग्राम का नाम है बीएमएस। इसको बीएमएस भी कहते हैं, ये इक्विवेलेंट है, मान के चलिए बीबीए का। सो बीएमएस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट ऑफ बीबीए। सो बीएमएस, बीएफआईए, बीबी के प्रोग्राम्स हैं। ये 3 प्रोग्राम डीयू के हैं। बीएमएस इज अ फैंटास्टिक कोर्स, और करना है तो आपको देना पड़ेगा सीयूईटी। इसी तरीके से अगर आपको मैनेजमेंट एजुकेशन परस्यू करनी है, नासीमुंजी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपने सुना होगा। नासीमुंजी का कैंपस है मुंबई के अंदर, विलेपाले इज अ वेरी वेरी फेमस ऑप्शन। देन दे हैव नवी मुंबई एंड अ कैंपस इन बैंगलोर। सिम्बायोसिस पुणे एंड सिम्बायोसिस नोएडा बहुत अच्छा ऑप्शन। सेंट जेवियर्स इज इन बॉम्बे, बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन उसके बाद आ जाता है नासीमुंजी के बाद आता है आईपी यूनिवर्सिटी, फैंटास्टिक करियर चॉइस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप मैनेजमेंट एजुकेशन करना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। जिसमें जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, कॉम्पीट करना होगा। एट द सेम टाइम हमारे सिटीज के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां कुछ नहीं देना है, स्ट्रेट अवे जाना है और बीबी के लिए एडमिशन। एंड इसीलिए बीबीए या एमबीए या कोई भी प्रोग्राम बदनाम हो जाता है, क्योंकि किसी प्रोग्राम में कुछ कॉलेजेस फ्री में एडमिशन दे देते हैं। दे आर नॉट ग्रेट ऑप्शंस। टॉप कॉलेज में जाने के लिए आपको आज भी कॉम्पीट करना पड़ेगा और प्लेसमेंट्स हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, फैंटास्टिक करियर चॉइस, विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी मीट वन टू वन। सो इट्स अ ग्रेट करियर चॉइस, आई विल नॉट डिस्कस इट। एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। अगर आप कॉमर्स करके बच्चे हैं और आपको जाना चाहते हैं, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा और कॉम्पीट करना होगा। सिमिलरली यू हैव ऑप्शंस लाइक होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बहुत एक्साइटिंग करियर्स हैं, आपको कॉम्पीट करना होगा। मास कम्युनिकेशन बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन है, एंड अगेन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। सो इन सब के लिए, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज के लिए आप सबको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। एंड वी विल लाइक टू इनवाइट यू फॉर अ 1-to-1 counseling session, either at center or at your school premises, okay, wherein we can talk about your academic interest, hobbies, co-curriculars, extracurriculars, and हमारी टीम है, we have a team of mentors who very very capable, very qualified. So Dr. Jyoti is the academic head, so she's a 100 percentile herself. तो जो स्कोर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे सारे टीचर्स वो एग्जाम लिखते हैं। सो लुक एट द स्कोर कार्ड ऑफ डॉक्टर ज्योति। सो शी हैज स्कोर्ड 200 आउट ऑफ 200। शी टीचेस वर्बल, शी टीचेस रीजनिंग, she has written these exams, and she's a 100 percentiler. So something which is very very exciting, बहुत ही important है। So we will, you know, in case you are keen, you are confused, आपको नहीं समझ आ रहा कि what is the right college, right course, right path for you, we are going to guide you, direct you and help you in this. Coming to the last takeaway, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेकअवे जो हम बात करने वाले हैं, बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम में अंतर क्या है। एक ऐसा टेकअवे जो आप सबके लिए बहुत रेलेवेंट है, इसका मैं आपको बोलूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको एक टेक अवे एक्सरसाइज दे रहा हूं और आपको इसका लॉजिक बता रहा हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, अगर आपके पास फोन है तो, नहीं तो आप लिख लीजिए एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे। दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट यू टू डू। आई होप इस टेबल को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट में आ रहे हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। 12th में हर बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट हैं। So you have subject 1, subject 2, subject 3, subject 4, subject 5, English plus 4 domain subject। कुछ बच्चों पे एडिशनल सब्जेक्ट भी हैं, आप अभी 5 के साथ ही इसको कैलकुलेट करें। आपके मैंने ब्रेकअप कर दिया किस सब्जेक्ट में थ्योरी के कितने मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स हैं, टोटल बन गए 100 मार्क्स। मैंने इसमें 70-30 इसलिए किया, जैसे फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जिसमें 70 थ्योरी होती है एंड 30 प्रैक्टिकल होता है। So that's how you need to be realistic in writing these numbers. So theory में कितने हैं, practical में कितने हैं। अब आपको लिखने हैं projected marks in theory, projected marks in practical, okay? So projected marks आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 80 है, theory के projected marks यहाँ पे आ जाएंगे, practical के projected marks यहाँ पे आ जाएंगे, and that is what is the structure of this particular exam. तो आपने थ्योरी, प्रैक्टिकल्स यू ऑल नो, स्कूल में होता है, इंटरनल होता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल। सो वी ऑल गेट सम डिसेंट मार्क्स इन प्रैक्टिकल। आप जो भी नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल में लिखिए, जो भी नंबर थ्योरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं थ्योरी में लिखिए, एंड इनके बाद में यहाँ पे अपना प्रोजेक्टेड स्कोर निकालिए। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा,
थ्योरी में जितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज उसमें नंबर कम रखिए। आपके एक्सपेक्टेड हैं 60 आउट ऑफ 80, आप मान के चलें कि मेरे आएंगे 57 आउट ऑफ 80। तो अपने थ्योरी के नंबर्स को आज कम प्रोजेक्ट करें कि आपके, और ये प्रोजेक्शन आज के बेसिस पे नहीं करना है, आप इवेंचुअल एंड बेसिस पे करेंगे कि ट्वेल्थ में मुझे लगता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने आ जाने चाहिए। टेक अ पेसिमिस्टिक व्यू, इन दोनों का सम कर दीजिए यहाँ पे, सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 सम 5 सम 6, यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्टेड स्कोर निकल आएगा। आप ये निकाल के देखिए और आपको समझ आएगा ये कि मेरा टोटल स्कोर कितना बन रहा है, मेरी परसेंटेज कितनी बन रही है। आपने ये निकाला। इस एक्टिविटी को आज करने के दो बेनिफिट हैं। सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, मेरे को कहां पे इंप्रूव करना है, मैं कहां पे लैग कर रहा हूं। पेसिमिस्टिक प्लानिंग करनी है। हमेशा प्लान ऐसा मत करिए कि 60 लग रहा है, नहीं मैं और अच्छा कर जाऊंगा और 70 लिख दें ना, वैसा नहीं करना है। 60 की उम्मीद लगाएं तो 2-3 नंबर कम ही लिखें। सो पेसिमिस्टिक प्लानिंग से क्या होगा कि आपको अपने बोर्ड में अपना इंप्रूवमेंट एरिया पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझ, ताकि आप उस पर काम कर पाएं। और दूसरा, आपको यह भी समझ आएगा कि मेरे इतने मार्क्स तो यहां पे आते हुए लग रहे हैं, कितना गैप है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। दैट्स नंबर वन। दूसरी चीज से, इस एक्सरसाइज से जो हमें यह समझ आती है कि आपको यह क्लैरिटी है कि मेरे बच्चे के बोर्ड में तो इतने आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या मैं बोर्ड के साथ साथ में एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी को बैलेंस ऑफ कैसे करूं, यह समझना भी जरूरी है। सो ये आपको फोकस करना पड़ेगा कि बच्चे के बोर्ड में कितना गैप है, और इसको अब हम, अगर हमें प्रिपरेशन करनी है एंट्रेंस एग्जाम की भी, तो दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, और क्या रियलिटीज हैं। सो ये एक बहुत ट्रू पिक्चर आपके बच्चे के लिए आपके सामने लेके आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पे हम काम कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। So coming to the last point, last 5 minutes, what exactly are we talking over here? So what we are saying over here is, आफ्टर 12th हर बच्चे को एप्टीट्यूड करना है। आई होप द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी वेरी क्लियर। एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एप्टीट्यूड टेस्ट इज नथिंग बट ए टेस्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये 10वीं के लेवल पे बेस्ड होता है। 7th 8th 9th 10th हर बच्चा दे सकता है। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, और इसमें मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, एक मिनिमम स्कोर चाहिए होता है, और नेगेटिव मार्किंग इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इंग्लिश में क्या आता है, वोकैबुलरी, ग्रामर, इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, इंग्लिश में आता है। ठीक है। मैथ्स में क्या क्या आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यूनिटरी मेथड, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियोज एंड परसेंटेजेस। देन उसका लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ओके, एंड डिडक्शन, inferences, coding, decoding, all that kind of questions comes in the current affairs, and GK is very very important, and that is what is asked in these exams. So बहुत ही important है आप समझें सब प्रोग्राम्स को। जीके बड़ा पेनफुल सब्जेक्ट है बच्चे के लिए, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, एंड जीके ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजों पूछा जाता है। सीयूटी के अंदर 30 to 35% वेटेज जीके की है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं लॉ की, लॉ के अंदर जीके इज अ वेरी प्रोमिनेंट। अगर हम बात करते हैं आईपीएम की, मैनेजमेंट की एग्जाम करते हैं, रिटन एग्जाम में जीके नहीं आएगा, लेकिन जब इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो जीके पूछा ही जाएगा। सो जीके इज समथिंग, करंट अफेयर समथिंग विच यू कैन नॉट एस्केप, बहुत इंपॉर्टेंट है। What role parents can play in this journey? Very exciting, very important point for parents to understand. 3 सपोर्ट चाहिए मुझे पेरेंट्स से अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा करे। सपोर्ट नंबर 1, आप सारे पेरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ देखते हैं। कैन यू प्लीज डिस्कस द न्यूज विद योर किड्स? ये नहीं करते हैं। तो आप दिन में 5 मिनट 10 मिनट का समय निकालिए, प्री डिनर पोस्ट डिनर, जिसमें आप ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द टॉप न्यूज ऑफ द डे, क्या हुआ दुनिया में, क्या हुआ देश में, एंड कैसे हम, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन इश्यूज को लेकर। नंबर 2, मंथली बजट। हमने अपने बच्चों को मंथली बजट दिया है शॉपिंग के लिए, पार्टी के लिए। गिव मंथली बजट टू बाय बुक्स, मैगजीन एंड नॉवल। अगर या तो लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन का बजट दीजिए, हर महीने का सब्सक्रिप्शन बजट है। ठीक है। सो वी want our kids to read, so we need to make sure that they have access to right books, right libraries, right content. So reading is something which is very very important. It has to be built, it has to be inculcated into their daily schedule, and ये तभी होगा जब हम इसको actively push करेंगे as parents। बच्चे अपने आप रीडिंग पिकअप नहीं करते हैं, पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है रीडिंग को पिक करने के लिए। लास्ट, सोने से पहले इज योर डियर टाइम। सो पेरेंट्स को सोने से पहले एक टाइम स्लॉट फिक्स करना पड़ेगा कि दिस इज द वेयर द स्क्रीन टाइम एंड्स फॉर अस एज पेरेंट्स।
तो यू फिक्स अप योर स्क्रीन टाइम कि इस टाइम के बाद घर में एक स्क्रीन नहीं होगी, nobody is on the social media, so you have to first do that. Set an example like that. Last 20 मिनट सोने से पहले is your dear time. सोने से पहले इंस्टा बंद, फेसबुक, whatever, you're off from social media, you're off from the web series, you're off from the TV, and last, some part of the day when you are sleeping, you're reading. Dear means drop everything and read. So रात को 20-25 मिनट सोने से पहले you're reading, you're discussing, you're reading an article, magazine, novel. So बहुत important है, बच्चे इसको gradually pick करेंगे और वो तभी pick करेंगे जब आप इसको follow करेंगे. So what we want them to do, पहले हमें वो खुद करना होगा as parents, and that is something which is very very important. What can students do? बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट आप अपने aptitude exams को क्रैक करें? What can students do? 3 golden rules I'm going to share with you. 3 golden rules. Rule number 1, so रोज 20 मिनट आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं. You know what is editorial? न्यूज़पेपर आता है, उसके अंदर एक स्पोर्ट्स पेज होता है, बिजनेस पेज होता है, एडिटोरियल पेज होता है. तो रीड एडिटोरियल्स 20 मिनट्स एवरी डे. वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करेगा एंड आपके एग्जाम्स में जाएगी. ये आपके बोर्ड मार्क्स भी इंप्रूव करने वाला है फॉर श्योर. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, 20 मिनट्स न्यूज या तो पढ़नी है, सुननी है, देखनी है. My dear kids, I'm talking to you. This is for you. 3 golden rules which you will follow. Read news, watch news, discuss news, and do whatever. But आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हुआ, देश में क्या हुआ. ऐप में चाहिए, ऐप में लोड करिए ऐप को. ठीक है, इन शॉर्ट्स आता है, गूगल न्यूज है, टाइम्स है, हिंदू है, whatever. But news is something which is important. And last 20 minutes before you go to bed is your dear time. Drop everything and read. 20 minutes before you go to bed is your dear time. सोने से पहले इंस्टा, फेसबुक, सॉलिटेयर, कैंडी क्रश, पबजी, स्नैपचैट एंड वॉट एवर यू आर ऑन टू, सब कुछ बंद. वेब सीरीज बंद, बिंज वॉचिंग बंद, कान में लगा के जो सुन रहे हो, गेम्स चल रही हैं, गप्पे चल रही हैं, सब बंद. एंड रात को 20 मिनट सोने से पहले इज योर डियर टाइम. ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड. जितना आप रीड करोगे उतना कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, वोकैबुलरी अच्छा होगा, आपका स्कोर बोर्ड में अच्छा होगा. ठीक है. एंड दिस इज Deepak Madan. We have been counseling, teaching, mentoring kids. Career Launcher has been doing it since 1995, and I have been personally associated with CL since 2000. So it has been a 24-year long journey counseling kids. We have got multiple programs to suit your need. We have a program for law, we have a program for management, we have a program for CUET, and as a part of this particular program, we take care of, हमारे पास classroom teachings होती हैं, online, offline, study material share किया जाता है, ऑनलाइन सपोर्ट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, टॉपिक टेस्ट होते हैं. सो वी ऑफर लॉट ऑफ काइंड ऑफ सपोर्ट. आपको कब कौन से फॉर्म भरने हैं. वी गिव एग्जाम कैलेंडर्स. वी हैव गिवन एग्जाम कैलेंडर्स टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. आप वो देखिएगा अगर आपके पास है, उसको प्रोमिनेंटली जगह पे पेस्ट करके रखिए. सो वी डू शेयर एग्जाम कैलेंडर्स विद लॉट ऑफ किड्स. सो वी ऑफर डाउट सेशंस, 1-to-1 डाउट सेशंस टू किड्स. कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में एडमिशन हो गया, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए. सो वी ऑफर लॉट ऑफ दैट सपोर्ट, गाइडेंस एंड mentoring. This is a team in action at Career Launcher which is supporting, and this is a team which takes care of everything. So the team which is very qualified, very experienced, very capable, and that is what is the structure. So we have a dedicated team on quantitative aptitude, English and critical reasoning, legal aptitude, and GK and current affairs. So this is something which is very very important, and because of these eminent faculties, very consistent, very stable faculties, we have got fantastic results. Okay. So coming to that last slide, this thing. So sharing couple of results with you. Gurgaon, we have got good number of selections in law. 9, 15, 27 ranks in Gurgaon, and similarly Faridabad 14, 24, 360 ranks are the top ranks here. IIMS के अच्छे selections हैं. We'll share these results. 51 100% talent CUT from Gurgaon and 62 in Faridabad. So that's the structure we are talking about. So over to you. I am opening this particular session for all queries, questions, and doubts, and anything. So you can raise your hand, put your questions in the chat box, or you can unmute yourself also. You're all unmuted. So you have an option to raise your hand and speak. So I have unmuted all of you. Yes. Over to you, Madhav. And yeah, hi. Just one thing, Madhav. I will also request all the parents to share some feedback, students to share feedback in the group about how was the session, anything specific we should include. So quick feedback also will be of great help, so that we can improve our sessions. Yes, over to you, Madhav.
Very good. Okay, so since this session was primarily focused on domestic education, so we will, so you have my number. So this is our locations, we can look at, Madhav, we are available in Sector 14. Where are you based? We are in Sector 14 and Sector 83, and then Faridabad in Sector 15 and 79, which is in World Street. तो अगर तेरा abroad का plan है, we will do a separate one-to-one session. Abroad में I'll just give you a quick perspective. There are two, three things which you need to consider. Number one, program कौन सा target कर रहे हैं, कंट्री कौन सा टारगेट कर रहे हैं. सो नाउ इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. सो आई हैव टू लुक एट द eligibility criteria for which country. US has a different criteria for admission. Canada is different. ऑस्ट्रेलिया अलग चल रहा है. दुबई, अगर तेरे को सिंगापुर जाना है तो उसका रिक्वायरमेंट अलग है. सो वी नीड टू फिगर आउट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्रॉड थिंग्स, द प्रोग्राम यू आर टारगेटिंग एंड द कंट्री यू आर टारगेटिंग. ये दोनों के बेसिस पे हम उसको टारगेट करेंगे. एंड वी हैव टू प्लान अर्ली. सो यू हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब्रॉड ऑल्सो, एंड बिल्कुल अटेंशन रखना चाहिए कि हम उन प्राइवेट फेक यूनिवर्सिटीज में ना जाएं. सो बहुत ज़्यादा गेम है इन टर्म्स ऑफ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग अब्रॉड दे गो एंड देन दे रियलाइज कि ये यूनिवर्सिटी तो अच्छी है ही नहीं. इट्स नॉट वर्थ इट. So we need to start early. It's a combination of two broad things: a strong profile and a good score. Okay. So these are two broad things. So यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास में प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस बाद में आता है. पहले रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न के बाद प्रोफाइल लिया जाता है. व्हेन यू टॉक अबाउट स्टडी अब्रॉड, प्रोफाइल्स इज कंसिडर्ड अर्ली. तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर, जैसे सैट, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, प्लस अ प्रोफाइल स्कोर, दोनों को मर्ज करके आपको कॉल जनरेट किया जाता है. Anything else? So you have to start early. You have to start early. Madhav, you are in 11th or 12th? 12th. So अगर 12th है तो टाइम कम है. We should be very very quick and take it up to the next level immediately. ये, so our contact details are here. So we are in Gurgaon, sector 14 and sector 83, Vatika city में है. And sector 14 Old DLF colony, Faridabad is sector 15 and sector 79. And in case you want to catch up, Madhav, you can reach out to me at this number and we can line up a one-to-one counseling session to take care of your. Great. Anything else? What about students with medical? So yes, Lipika has a doubt first. See. Yes. Yes, it is right, but Bennett and Chandigarh University बहुत पीछे आते हैं. उससे पहले 10 options हैं, and I will request each one of you, अगर if you want to explore some option, join this channel called Examopedia. इसके अंदर मैंने हर career के top options लिखे हैं. So Bennett and ये तो बहुत बाद में आएंगे. So scan this QR code quickly and join the Examopedia, which is very very important. So join this Examopedia. आप देखेंगे कि इसमें साइकोलॉजी के, इंग्लिश ऑनर्स के, ओके, माय कोलीग हैज आल्सो शेयर्ड द लिंक इन द चैट बॉक्स. तो आप इसको ज्वाइन करें. एवरी पेरेंट, एवरी स्टूडेंट शुड बी ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कॉल्ड एग्जामोपीडिया. आप देखेंगे कि अगर आप इस चैनल पे हैं तो आपका कोई भी एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा. तो यू विल नॉट मिस एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम्स, एग्जाम की डेट, एग्जाम की टाइमलाइन. हर करियर के टॉप कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. ओके, साइकोलॉजी के बेस्ट कॉलेज, प्लीज गो टू एग्जामोपीडिया. देवांशी, सब कुछ लिखे हैं, टॉप ऑप्शंस, टॉप एग्जाम्स. तो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ऑप्शन विच यू शुड लुक एट. तो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है अपने पास में. डीयू में अपने पास दो बहुत प्रोमिनेंट ऑप्शंस हैं. देन यू हैव जामिया इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन टू बी लुक्ड एट फॉर जर्नलिज्म. एंड देयर आर फ्यू मोर. बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो देयर. पीएम मुंज, ये वाले जो ऑप्शंस आप बोल रहे हैं, दे आर प्राइवेट ऑप्शंस. दे विल कम वे लेटर. Yes. So Umang, visit the nearest career launcher center and take it up from there. Where do you put up, Umang? Sector 15. So please reach out to career launcher center in sector 15. You can walk down. Okay. Anjali is asking what about medical students. So this session was more of stream neutral session, Anjali. तो अगर आपको कुछ very specifically medical related जानकारी चाहिए, information चाहिए, so we'll take it forward from there. So we can work it out. Yes. Anything else? Any other question, query, doubt before we pause?
Great. I hope the session has been very, very relevant and you have enjoyed this particular